हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 में, जो कि वीडियो 3 भी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें बाइनरी कन्वर्ज़न पढ़ा था, मतलब डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ज़न। इसके अलावा बाइनरी एडिशन भी पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? Actually, the hexadecimal word is made up of two words, that is hexa, where hexa is 6 and decimal 10. So 6 plus 10 is equal to 16. In hexadecimal number system, there are 16 digits. There are 16 digits. And what these digits are? These are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. You see, there is a difference from decimal number to hexadecimal. What is the difference? The difference is after 9 we count it as A, B, C, D, E and F, not as 10, 11, 12, 13, 14. So this is a difference in hexadecimal number system. We count 10 as A, 11 as B, 12 as C, 13 as D, 14 as E and 15 as F, or A as 10, B as 11, C as 12, D as 13, E as 14 and F as 15. So these are 16 digits. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So the first digit is 0 and the last digit is F, that is 15. So you have to take care that after 9 we read as A, B, C, D, E, F, not 10, 11, 12, 13 and 14. Okay, now the base of hexadecimal number system is 16. Why 16? Because these are 16 digits in hexadecimal number system. And now we will talk about place value of hexadecimal number system. The place value of hexadecimal number system is as similar as decimal and binary, but there is only difference. The base is 16. Okay, look, 16, 16, 16, all these are the base 16, and the power starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So 16 to the power 0 is equal to 1, 16 to the power 1 is equal to 16, 16 to the power 2 is equal to 256, 16 to the power 3 is equal to 4096 and so on. And you can manage it as also 1 into 16 is equal to 16, 16 into 16 is equal to 256, 256 into 16 is equal to 4096 and 4096 into 60 is equal to 65536 and so on. Now we will move to the next part, that is the important part, conversion from decimal to hexadecimal number system. In hexadecimal number system, conversion is as similar as to binary, but the only difference is that in binary conversion we divide the decimal number by 2, and here we will divide the decimal number by 16. Okay, and the same rule will be applied here also. Let's take an example. Here 459 is as a decimal number, and we have to find hexadecimal equivalent of 459. Okay, so make 3 columns. In first column fix 16, and in the second column, that is the middle column, it is the decimal number system which is given in the example 459, or which we have to find the hexadecimal equivalent. And here it is the third column, and third column is for remainder portion. Okay, now start division. 16 2 ja 32. Here I have written already 16 2 ja 32 and 13 after subtraction, and 9 and 16 8 ja 128, and after subtraction there is 11. 11 is remainder, so we will note it down as here in the remainder portion. 11 is remainder and 11 is here, and 28 is the quotient, so 28 is noted here. Now divide further. 16 1 ja 16 and 16 1 ja 16, and minus 16 from 28, it is 12, and 12 is the remainder, note it down here, and 1 is the quotient, note it down here. Okay, देखिए इसमें हुआ क्या है, कुछ करना नहीं, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे हम बाइनरी में 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप 16 से डिवाइड करेंगे, और जिसका ये जो डेसिमल नंबर है, जिसका हमको हेक्साडेसिमल निकालना है, वो यहाँ बीच में लिख देंगे, और इधर रिमाइंडर पोर्शन रहेगा, और हम डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। तो 16 से हमने इसमें पहले डिवाइड किया, यहाँ एग्जांपल बना के मैंने दिखाया, ये रफ है,
पहले भी आपको बताया था, इसको करते नहीं है फेयर में। तो 16 2 जा 32, हमने इसको घटाया, इधर 13 आया, 9 उतार लिए, 16 8 जा 128, फिर इसको सॉल्व किया, 11 रिमाइंडर आ गया। 11 रिमाइंडर आया तो उसको हमने यहाँ नोट कर लिया, और ये जो आपका क्वोशेंट 28 था उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। फिर हमने क्या किया, फिर आगे डिवीज़न परफॉर्म किया, क्योंकि अभी तो 28 बड़ा है तो अभी डिवीज़न हो सकता है। किससे 28 बड़ा है? 16 से, तो अभी डिवीज़न परफॉर्म होगा। फिर 16 1 जा 16, यहाँ फिर सॉल्व किया, 16 1 जा 16, और हमने इसमें से 28 में 16 घटाया, 12 आ गया। 12 हो गया हमारा क्या? रिमाइंडर, वो हम यहाँ नोट कर लेंगे, और 1 हमारा क्वोशेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 जो है वो 16 से छोटा है, सो हम आगे डिवीज़न परफॉर्म नहीं करेंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे, और फिर हम नंबर को नोट करेंगे, अपने हेक्साडेसिमल कोड को नोट करेंगे। उसी तरीके से इसे बाइनरी में करते थे, फर्स्ट क्वोशेंट, ये लास्ट क्वोशेंट को, और इधर लेफ़्ट टू राइट चलते थे, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते थे। ये मैंने एरो बनाया भी है। तो पहले 1 को नोट कर लिया, फिर 12 को नोट कर लिया, फिर 11 को नोट कर लिया। अब देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये हेक्साडेसिमल कोड है, और मैंने आपको बताया था कि 9 के बाद हम 10 11 12 नहीं लिखते, ABCDEF लिखते हैं। तो मैंने बस आपको यहाँ एक बार दिखाने के लिए दिखा दिया है, ये लिखते नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये सब सॉल्व करने के बाद 1 और 12 के लिए C, 11 के लिए B। क्या था 12 के लिए? 12 के लिए हमारा था C, और 11 के लिए था हमारा B। तो ये हो गया हमारा अपना हेक्साडेसिमल कोड, जो कि 459 डेसिमल था, उसका इक्विवेलेंट है 1CB। ठीक है, इस तरीके से हमारा कन्वर्ज़न होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। मान लिया कि हमारा एक नंबर है, मानते हैं कुछ नंबर ले लेते हैं, इसमें 459 था, चलिए 472 ही ले लेते हैं, इसी के आसपास लेते हैं, फिर डिवीज़न करते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, 16, फिर सॉल्व करते हैं, इधर रफ में करते चलते हैं, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, 472, 16 2 जा 32, अभी 48 हो जाएगा, 16 3 करेंगे तो 16 2 जा 32, इधर घटाएं, 7 में से 2 जाएगा 5, और 4 में से 3 गया 1 और 2। अभी देखिए 16 8 जा 124, एंड 16 9 जा 144 होता है। ठीक है, 12 में से 4 गया 8। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब माइनस कर लेंगे, और इधर आ गया 0 और ये 0, तो हमारा क्या बचा? 8 ही रिमाइंडर बचा। तो ये 8 हमारा रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर को हम कहाँ लिख लेंगे? यहाँ, और हमारा क्वोशेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। फिर अभी और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 29 अभी 16 से बड़ा है। फिर करते हैं 16 1 जा 16, 1 टाइम से जाएगा, ये भी करके आप देख लीजिए, रफ में कर लीजिएगा, गलती नहीं होगी। ठीक, 16 1 जा 16, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, अभी हमारा क्या रिमाइंडर बच गया? 13। 13 रिमाइंडर लिख लिया, और क्वोशेंट क्या था? 1, और फिर हम अपने कोड को नोट कर लेंगे। तो क्या था? 472, ये डेसिमल था। देखिए जो नीचे मैं लिखता हूँ ये बेस होता है, क्यों? क्योंकि 472 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, वैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फिर भी नहीं लिखेंगे, आपके बुक में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये कोड नोट करते हैं। तो पहला था 1, और 13 के लिए क्या होता है? अभी मैंने 13 के लिए आपको बताया था, क्या होता है 13 के लिए? D होता है। ठीक है, तो 13 के लिए D होता है, तो इसका हो गया D, और 8 तो 8 ही है, तो फिर 1 13 ना लिख के हम लिखेंगे D और फिर 8। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, किसका? 472 का। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, और आपका देखिए मेजर पोर्शन ख़त्म हो गया है इस चैप्टर का। इसमें आपका मैंने नोट में भी दिया था, तो उसमें सेविंग दिया था कि डेटा कैसे सेव करते हैं पेन ड्राइव में, या कैसे DVD में या CD में हम डेटा को राइट करते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, मैंने नोट में दिया। हालांकि इसको क्लास में आएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर इसी तरीके, ये लेक्चर इसी तरीके से समाप्त होता है। थोड़ा और कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।